بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ابرار الحق مناس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل فیس بک یوٹیوب چینل اے بی نیوز. ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر عدم اعتماد کی جو ایک تلوار منڈلا رہی ہے اور جو گرما گرم بحث ہے، مباحثہ ہے، اس پر بات کریں گے کہ کیا عدم اعتماد ہونے جا رہی ہے اور یہ اس سب کے پیچھے کیا عوامل کیا کار فرما ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ کوئی وزیر اعظم نہیں چلنا چاہیے. یہ کچھ ٹائم سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ایک روایت پڑ چکی ہے. ایک بمشکل ایک پارلیمانی نظام اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے، 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، ایک بڑی اخراجات ہوتے ہیں، پھر ایک طویل جو ہے نا الیکشن کمپین ہوتی ہے، لوگ بڑی آزمائش میں آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ اپنے اپنے آزاد کشمیر میں اپنے حلقوں میں آتے ہیں، الیکشن کے لیے آتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور پھر جا کے ایک الیکشن جمہوری پروسیس مکمل ہوتا ہے. اور الیکشن کے بعد جب پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے، اس کا پارلیمانی لیڈر بن جاتا ہے، تو محض ابھی 2 4 مہینے نہیں گزرتے کہ اوپر سے عدم اعتماد کی خبریں شروع ہو جاتی ہیں. یہ آخر ہوتا کیوں ہے ایسا؟ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر ایک بہت چھوٹی سی ریاست ہے، اور اس کو ایک آزاد کشمیر کے کمشنر لیول کا ایک آدمی مظفرآباد میں بیٹھ کے اس کا انتظام چلا سکتا ہے. یہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے برابر جو ہے نا اس کی پاپولیشن ہے. پاکستان میں بہت سارے ڈسٹرکٹس ہیں جو آزاد کشمیر کی ٹوٹل آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بڑے ہیں. پھر بھی ایک بھاری بھرکم جو ہے اسمبلی یہاں پہ موجود ہے، 48 یہاں پہ سیٹس ہیں، اور پھر بڑی بڑی ایک بھاری کابینہ یہاں پہ ہوتی ہے. اور وہ کابینہ بڑی طویل، اس کے اخراجات دیکھیں تو وہ ایک بڑا ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے. گاڑیاں دیکھیں وزراء کی، ان کی شان و شوکت دیکھیں، ان کے معاملات دیکھیں، ان کے ٹی اے ڈی ایز دیکھیں، ان کے ڈیزل دیکھیں. یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی ریاست کے اندر اتنی بڑی کابینہ معرض وجود میں آتی ہے، اور پھر اتنے بڑے اخراجات. ایک طرف آپ کی قومی اخراجات، آپ کی جو ڈیولپمنٹ کے اخراجات، آپ کے نان ڈیولپمنٹ اخراجات، اور ایک طرف آپ کی پوری کابینہ کے اخراجات برابر ہوتے ہیں. ناظرین، سردار تنویر الیاس خان آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تو پہلے عمران خان صاحب نے عبد القیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم منتخب کیا. پھر انہی کے خلاف اپنی ہی پارٹی نے جو ہے نا عدم اعتماد کیا، اور پھر سردار تنویر الیاس کو عمران خان صاحب نے پارٹی پریزیڈنٹ بھی بنایا اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی بنایا. نہ موقع مل سکا عبد القیوم نیازی کو ڈیلیور کر سکتے، اور نہ ہی اب موقع مل رہا ہے سردار تنویر الیاس خان کو کہ وہ ڈیلیور کر سکیں. سردار تنویر الیاس کو جہاں تک ہم جانتے ہیں اور آزاد کشمیر اور پاکستان میں لوگ جانتے ہیں ان کو، وہ ایک انتہائی دیانتدار آدمی ہے، ایک انتہائی زیرک آدمی ہے، بہت ہی نفیس اور شفیق آدمی ہے. ان کا جو ویژن ہے، ان کا جو پروگرام ہے، ان کا جو اقتدار میں آنے کا اور سیاست میں آنے کا جو تصور اور خیال تھا، وہ تو ایک بڑا شفاف اور بڑا نفیس تھا. لیکن یہاں پہ آ کے لگتا ہے کہ ان کو بھی چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. ہر روز جو ہے نا عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ عدم اعتماد کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سردار عتیق صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے، اس کے پہلے سال 1.5 سال تو بڑا سموتھ چیزیں چلی، اور پھر بس عدم اعتماد کی. اس اسمبلی میں 3 پرائم منسٹر تبدیل ہوئے، اور اس وقت میں نے ایک جس طرح یہ بیوروکریسی ایک ٹرم میں نے استعمال کی تھی کہ یہ ایم ایل اے کریسی. یہ ایم ایل اے کریسی کا وہ جو ان کو بخار چڑھ گیا، ان کو یہ نہیں اترنے والا ہے، یہ اقتدار کا نشہ ہے، نہیں اترنے والا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے اقتدار کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو پارٹی کے اندر، حکومت کے اندر اقتدار میں رہتے ہوئے کسی اچھے پورٹ فولیو کے نشے میں رہتے ہیں اور اس کے لیے سازشیں کرتے ہیں. یہ بڑا عجیب ہے، بڑا افسوسناک ہے. یہ جو ایم ایل اے کریسی ہے، یہ آج بھی جو عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کسی قومی مفاد کے لیے نہیں ہو رہی ہیں، نہ مسئلہ کشمیر کے مفاد میں ہو رہی ہیں، نہ تحریک آزاد کشمیر کے وسیع تر مفاد میں ہو رہی ہیں. یہ جو عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے ممبران اسمبلی کر رہے ہیں، اور حکومت میں بیٹھے ہوئے بھی وزراء بھی جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں.
पिछले दिनों एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन अपोजिशन के एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे, मेरी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि दरअसल हमने सिर्फ इसलिए ये हर 15-20 दिन में आदम एतमाद की बात शुरू कर देते हैं कि एमएलएज जो हैं वो आजकल चूँकि हुकूमती अखराजात बहुत कम है, कमीशन पैसे ठेके कहीं से मिलते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपया मिल जाता है जब अदम एतमाद की तहरीक का नाम आता है। तो फिर इस वजह से वो हमें कहते हैं जी कि आप अदम एतमाद का शोशा छोड़ते रहिए ताकि हमारा चूल्हा पानी चलता रहे। ये भी बड़ी अफसोसनाक है। हुकूमत में बैठे हुए लोग, एक आपका एक आइन है, आपकी एक पार्लियामेंट है, आपकी एक पार्टी पार्लिमानी पार्टी है, आपके पाकिस्तान में इमरान खान हेड है, आप आज़ाद कश्मीर के अंदर तनवीर यास साहब हेड है। तो ये बागी अरकान कौन होते हैं जो हर बार जो है ना अपोजिशन से मिल के अदम एतमाद का शोशा छोड़ के अपने अखराजात लेने के लिए कहाँ से आते हैं, मैं इस बहस पे नहीं पड़ता, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो उनको करोड़ करोड़, 1.5 करोड़ रुपया मिल जाता है और 2-4 महीने के बाद, और उनके ज़ाती मामला चल रहे हैं, फिर 2-4 महीने के बाद अपोजिशन से मिल के अदम एतमाद की बात शुरू कर देते हैं, फिर इधर उधर से पैसे पकड़ के फिर खामोश हो जाते हैं। नाजरीन, ये कोई अवाम के मफाद में नहीं है। आप एक प्राइम मिनिस्टर को वो प्राइम मिनिस्टर जिसका आज़ाद कश्मीर की रवायती सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, शायद आपको ख़तरा भी यही है कि ये चूँकि एक बिल्कुल नया आदमी है, उनका बिजनेस है अपना, ये बिजनेस टाइकून है, इसने आज़ाद कश्मीर के अंदर तो ना खाना है और ना खाने देना है, इसलिए शायद आपको ये तकलीफ़ हो। लेकिन गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर के पब्लिक का, अवाम का कौन सोचेगा? यहाँ आटा नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे लोगों के मसाइल कितने हैं। आपको साल, 1.5 साल हो गया इस पार्लियामेंट को आए हुए, इस असेंबली को आए हुए, गवर्नमेंट को आए हुए, कितने मंसूबे आपने डिलीवर किए, कितने कौमी मंसूबे आपने शुरू किए, कितने छोटे छोटे मंसूबे आपने शुरू किए। जिस हल्के में मैं गया मैंने पता किया कहीं पे कोई डिलीवरेंस नहीं है, कहीं पे कोई काम काज नहीं हो रहा, मेरिट का कोई कोई हाल ही कोई नहीं है, गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आटा, एक आटा था वो भी लोगों को नहीं मिल रहा है, महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। और ये पार्लियामेंट के मेंबरान जो है वो पीटीआई के हों या अपोजिशन के हों, वो इक़्तिदार इक़्तिदार खेल रहे हैं, अपोजिशन अपोजिशन खेल रहे हैं, और अदम एतमाद खेल रहे हैं। इनका आवाम के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, कोई आवाम के मफाद के लिए ये ऐसा नहीं हो रहा। नाजरीन, ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके ज़ाती मफादात हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को मौका मौका दें, उसको काम करने दें, सदात तनवीर यास को फ्री हैंड दें, काबीना पूरी ब्लाइंड फेथ करे, अंधा एतमाद करे, बिल्कुल यक ज़बान होकर प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हो जाएं कि हम आपके साथ हैं। इधर हमारे जो साबिक पार्टी प्रेसिडेंट पीटीआई के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, वो तो जब भी ये अपोजिशन अदम एतमाद की बात करती है वो बाहर चले जाते हैं। एक मतलब एक टाइम में तो 1.5-2 महीने बाहर इस इंतज़ार में रह के आगे कि मेरी अदम मौजूदगी में अदम एतमाद हो जाए, चाहे ताकि मेरे ज़िम्मे कोई बात ना आए। लेकिन इधर अदम एतमाद नहीं हो सकी, वो ऐसे ही वहाँ जाके बैठे रहे, फिर जाके बैठ गए, फिर बैठ गए, सिर्फ इसलिए कि अदम एतमाद तनवीर यास पर हो तो मैं वापस जाऊँ। वहाँ पे भी सरकारी अखराजात पर कोई काम नहीं, कोई मसला कश्मीर पर कोई काम नहीं, कहीं कहीं पे कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं है। इवन के हमारे वज़रा भी, उनको भी बड़ी शौक है कि वो जाते हैं जी हम जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं और फलां फलां जा रहे हैं, फलां फलां बैरून मुल्क दौरे पे जा रहे हैं जी, मसला कश्मीर के लिए हम वहाँ पे काम करेंगे, फलां करेंगे। ये सारा एक जोक है, ये सारे मसखरे हैं, ये लोगों के साथ, अवाम के साथ जो है ना इनका एक बदतरीन किस्म का मजाक है, और तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ एक मजाक है। नाजरीन, जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक है, मैं आपसे ये पूरे यकीन के साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद नहीं होने वाली। इस बहस से निकल जाएं, इदारे, डिपार्टमेंट, वज़रा, वजारतें, सेक्रेटरीट, सारे इस बात बहस से निकल के अवामी मफाद आमा के लिए काम करें, अवाम को रिलीफ देने के लिए काम करें, गुड गवर्नेंस के लिए काम करें, मेरिट के लिए काम करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव करें, चेक एंड बैलेंस रखें, मंसूबे शुरू हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो करप्शन हो रही है नहीं हो रही है, किन लोगों के हाथों में जो है ना कौन सी चीज़ें आप भेज रहे हैं, जिन लोगों को आप नुमाइंदे बना के भेज रहे हैं, क्या वो अवामी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें, इनपुट देखें, और इस बहस से निकल जाएं। मुझे जहाँ तक ताल्लुक है, मैं जहाँ तक सदात तनवीर यास खान को जानता हूँ, वो अदम एतमाद कामयाब नहीं होने देंगे, और अपोजिशन को किसी सूरत में भी इस पर कामयाबी नहीं मिलेगी। ये अलग बात है कि आपकी पार्टी अंदर से ही किसी को टेक्नोक्रेट को जो है ना वो रिज़ाइन करवा के
मोहतरम बैर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को ले आए, 7-8 वोट वो उनको दे दें और ख़ुद वज़ीर आज़म आ जाएँ या किसी और को बना दें। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल का, ना तो अदम एतमाद होगी और ना अदम एतमाद कौम के वसीतर मफाद में है। पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, डॉलर कहाँ पे पहुँच गया, महंगाई कहाँ पे पहुँच गई, इंटरनल क्राइसिस कहाँ पे है, इदारों की हालत देखें क्या हो रही है। आपके बड़े बड़े इदारे जो है वो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल बेबस होकर बैठ चुके हुए हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, दुनिया के अंदर इज़्ज़त और तौक़ीर आपकी ख़त्म होती जा रही है, और आप यहाँ पे अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं और रोज़ ब्लैकमेलिंग की बातें कर रहे हैं। अदम एतमाद किसी सूरत में भी नहीं होगा, और ये सदात तनवीर इलियास खान साहब किसी सूरत में भी नहीं होने होने देंगे। हमारी ख्वाहिश ये है, अवाम की ख्वाहिश ये है, लोगों की ख्वाहिश ये है कि वज़ीर आज़म को काम करने दिया जाए। इस सियासी निज़ाम को डिस्टेबल ना करें। ये आज अगर आज डिस्टेबल होगा तो कल आपके लिए भी मुश्किलात होंगी। वही पिछली दफ़ा सदात अतीक साहब की असम्बली में जब 3-4 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुए, यही होगा। आप इनको तब्दील करेंगे, 6 महीने बाद आपको कोई तब्दील करेगा। ये खेल ख़त्म करें। आज़ाद कश्मीर एक छोटी सी रियासत है, आपके पास छोटे छोटे हल्के हैं। अगर आप उनकी तामीर व तरक्की के लिए काम करें, लोगों के मसाइल पर तजावीज़ बनाएं, लोगों के मसाइल हल करें, लोगों को खुशहाल करें, लोगों के इस वक्त जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ के पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करें, पार्लियामेंट में लोगों के मसाइल के हल के हवाले से तजावीज़ पेश करें। मसला कश्मीर तो खैर आपने क्या देखना है, वो तो आपके बस की बात नहीं है, सिवाय 2-4 वज़रा या मेंबरान असम्बली के, यहाँ तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये तो सारे जो है ना वो नाबालगान की एक टीम है, उन्होंने क्या करना है। लेकिन मैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आए रोज़ अदम एतमाद का मामला है, खुदारा इस कहानी को ख़त्म कर दीजिए और आज़ाद कश्मीर को एक एक बेहतरीन रियासत बना दीजिए, एक बेहतरीन फलाही रियासत बना दीजिए, ताकि लोग खुशहाल हो सकें। लोग आम आदमी तक जो है ना वो उसको फैसिलिटेट किया जा सके। आम आदमी अपनी रियासत और अपने हुक्मरानों और अपने मेंबरान असम्बली पर खुश हो, मुतमईन हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकेंगे तो याद रखिए इलेक्शन कोई दूर नहीं है। आइंदा इलेक्शन में आपको भुगतना पड़ेगा, आइंदा इलेक्शन में आवाम के गमो गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और फिर आप आज जो असम्बली के अंदर इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं, कल आने वाले वक्त में अवाम आपको इक़्तिदार में तो क्या आपको असम्बली में भी नहीं बैठाएंगे। सदात तनवीर इलियास को, वज़ीर आज़म को, उनकी काबीना को चाहिए कि वो मिल के प्राइम मिनिस्टर के हाथ मजबूत करें और कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर की रियासत की बेहतरी के लिए और आवाम के मफाद के लिए जो मनसूबे हैं उसको तकमील करें। यही आपके लिए और हमारे लिए बेहतर है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अवाम भी आपसे यही तवक्को करते हैं। नाज़रीन, आपसे जल्द मुलाकात होगी। हमारा चैनल यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी रोज़ की जो है ना वो जो हमारी व्लॉग्स और चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।